مسیح یسوع کے بابرکت نام میں آپ سب کو میری طرف سے سلام۔ وہ حوالے دیتے مجھے تخت کے تلک سے جو لکھے ہیں، تو خداوند نے چاہا تو آج ہم ایک تخت پر بات کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور یہ پرانے عہد نامہ سے بھی ہم دیکھیں گے اور نئے عہد نامہ سے بھی جو ہے ہم دیکھیں گے کہ وہاں پر کتنی شخصیتیں موجود ہیں تخت کے اوپر، ٹھیک ہے؟ جی میرے ساتھ پہلا حوالہ آپ نکالیے گا، حزقییل کی کتاب، اس کا پہلا باب، اس کی 26 آیت، اس پر غور کریں گے۔ ہم ذرا اس کو پرانے عہد نامہ سے دیکھتے ہیں، پھر نئے عہد نامہ کے اندر آ کر ہم اسے دیکھیں گے۔ اس عنوان پر میری کوئی تیاری نہیں ہے، لیکن یہ کافی دیر میں حوالے دیکھتا رہا، لیکن خدا نے مجھے یہی کہا کہ آج اسی پر ہی میسج دے دیا جائے، ٹھیک ہے؟ تو جو بھی خدا مجھے لفاظ دے گا میں ضرور آپ تک پہنچاؤں گا۔ جی مل گیا سب کو؟ حزقییل کی کتاب، جی اس کی 26 آیت ہے۔ جی یہاں پر کچھ اس طرح سے لکھا ہوا ہے، اور اس فضا سے اوپر جو اس کے سروں کے اوپر تھی تخت کی صورت تھی، اور اس کی صورت نیلم کے پتھر کی سی تھی، اور اس تخت نما صورت پر کسی انسان کی سی شبیہ اس کے اوپر نظر آئی، اور میں نے اس کی کمر سے لے کر اوپر تک سکیل کیے ہوئے پیتل کا سا رنگ اور شعلہ سا جلوہ اس کے درمیان اور اس کے گردا گرد دیکھا، اور اس کی کمر سے لے کر نیچے تک میں نے شعلہ کی سی تجلی دیکھی، اور اس کی چاروں طرف جگمگاہٹ تھی، جیسی اس کمان کی صورت جو بارش کے دن بادلوں میں دکھائی دیتی ہے، ویسی ہی آس پاس کی اس جگمگاہٹ کی نامود تھی۔ یہ خداوند کے جلال کا اظہار تھا، اور دیکھتے ہی میں اندھے منہ گرا، اور میں نے ایک آواز سنی جیسے کوئی باتیں کرتا ہے۔ سب کہیں آمین۔ اب ذرا ہم یہاں پر غور کریں گے، کیونکہ آپ ادھر آ جائیں، کوئی بات نہیں، سامنے آ جائیں، بیٹھ جائیں، آپ آگے آ جائیں، کوئی بات نہیں، آپ ادھر بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے؟ تو ذرا دھیان سے سنیے گا، کیونکہ بہت سے لوگوں کو جو ہے تخت کے اوپر کتنی شخصیتیں نظر آتی ہیں، وہ کہتے ہیں 3 شخصیتیں ہیں، لیکن آج ہم پرانے عہد نامہ کے اندر سے اور پھر نئے عہد نامہ کے اندر سے خدا کے تخت کے بارے میں جانیں کہ تخت کے اوپر اگر ہم پرانے عہد نامہ کے اندر دیکھتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ وہاں پر ایک انسان کی سی شبیہ، اگر ہم شبیہ پر بھی بات کریں تو باغ عدن کے اندر جہاں پر یہ لفظ استعمال ہوا کہ آؤ ہم انسان کو کس کی شبیہ پر بنائیں، اپنی شبیہ پر، وہاں پر بھی لوگوں کا یہ خیال ہے، تنظیموں کا یہ خیال ہے، بڑے سارے علماء کا یہ خیال ہے کہ وہاں پر تینوں موجود تھے۔ یہ علماء کی اپنی ایک رائے ہے، جو کچھ انہوں نے سیکھا اور جو کچھ وہ آگے تعلیم دیتے ہیں، لیکن آج ہم ذرا بائبل پر بات کریں گے، جہاں پر یہ لفظ استعمال ہوا کہ آؤ ہم انسان کو اپنی شبیہ پر، اب یہی شبیہ جو ہے کہاں پر نظر آ رہی ہے؟ تخت پر۔ تخت کے اوپر ایک شبیہ سی، یعنی ایک انسان کی صورت نظر آئی ہے، اور اس سے پہلے کہ ہم اس بات پر آئیں، پیدائش کی کتاب پہلے باب کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ خدا روح ہے
की पहली आयत क्या लिखा हुआ है? खुदा रूह है। आज हम जो शबी तख्त के ऊपर है, इस पर आज बात करेंगे, क्योंकि वहां पर 3 शख्सियतें नहीं बैठी हुई जैसा कि आज के जमाना के अंदर, बल्कि 1700 साल के अंदर से यही लोगों को सिखाया जा रहा है कि तख्त के ऊपर 3 शख्सियतें बैठी हुई हैं। इसलिए हम बात ले रहे हैं कहां से? जहां से हर चीज का आगाज होता है। अगर आपकी पैदाइश ना होती तो आप जमीन पर कैसे आते? ऐसी बात है। शबी आपकी तभी नजर आएगी ना जब आप जमीन पर होंगे। अब देखिएगा, खुदा रूह था, तो फिर 1 बाब की 26 आयत के अंदर क्या लिखा हुआ है? याद रखना, हम सारे हवाले नहीं पढ़ेंगे क्योंकि फिर लोग कहते हैं इतना बड़ा मैसेज है, सुनते भी नहीं। लेकिन जो लोग खुदा से प्यार करते हैं ना, विलियम ब्रैनम का एक मैसेज था और वो 6 घंटे का मैसेज था। कितने घंटे का? तो अगर सुबह को शाम को मीटिंग होती थी ना, तो लोग पता कितने बजे आकर वहां पर जमा होना शुरू हो जाते थे? मीटिंग शाम को होती थी, सुबह। इस कदर लोग खुदा के कलाम की भूख और प्यास रखते थे। और दूसरे मुल्कों में से जो है जहाज का सफर करते हुए आते थे ताकि हम उसकी मीटिंग के अंदर सबसे आगे बैठ सकें। तो यहां पर अब गौर कीजिएगा, खुदा रूह था, तो फिर आदम जो था वो क्या था? वो भी रूह था। पहले रूह को बनाया गया है। जब खुदा रूह था तो फिर आदम भी क्या था? ऐसी बात है, बहुत से लोग ये ख्याल करते हैं, ये हवाले आज लिखते जाएं और यहां पर शबी पर बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर खुदा जो है किस बदन के अंदर आया था? थियोफनी बदन के अंदर। जब वो बागे बदन के अंदर चलता था, फिरता था ठंडे वक्त के अंदर, तो कितनी शख्सियतें थी? पहले खुदा रूह था। मुझे एक बहन ने कॉल की कराची से, मुझे कहती है, ब्रदर जी मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूं। मैंने कहा जी सिस्टर आप पूछिए। उसने लिखा खुदा की रूह, यानी कि ये अलग अलग है। लोगों की समझ देखे, सोच देखे, ख्याल देखे, किस तरह उन्हें सिखाया जाता है। भाई खुदा अलग है तो रूह अलग है। जरा इस आयत पर आपने गौर किया है, खुदा अलग है तो रूह अलग है। मैंने कहा बहन जी क्या हो गया है? नेहदनामा के अंदर यीशु मसीह ने क्या कहा? खुदा रूह है, और वहां पर लिखा है खुदा का रूह। कहां पर जुम्बश करता थे? नहीं था, अकेला है, करता था। जरा एक एक पॉइंट को देखिए, एक एक लफ्ज को देखिए कि किस तरह जब खुदा ने क्या किया था। जब वो थियोफनी बदन के अंदर आया तो आपको पता है आदम जब रूह के बदन के अंदर था तो वो गिरा भी नहीं है। आदम जो समानी, फिर अगर हम देखते हैं तो लिखा है खुदा ने क्या किया था? मट्टी सानी। ऐसी बात है, जब खुदा कहता है आओ हम इंसान को अपनी छवि पर बनाए, तो बहुत से उलमा का यह ख्याल है कि वहां पर वो किससे मुखातब था? रूहुल कुदस और बेटे से। उन्हें कह रहे हो हम। लेकिन यहां पर अब गौर कीजिएगा, फरिश्तों की शक्ल भी इंसान की सी है। मैं बाइबल में से 40 हवाले आपको दे सकता हूं। सदूम और मूरा के अंदर फरिश्ते आए थे, उनमें एक खुदा था, लेकिन फरिश्तों की भी शक्ल इंसान की सी थी। और खुदा मैं कहता हूं उनसे मुखातिब था, ना के
बेटे से और ना रूहुल कुदस से। जरा आप गौर कीजिएगा, किससे था? क्योंकि जैसे ही आदम जो था, लिखा कि उसने फरेब, बाइबल ये कहती है आदम ने फरेब नहीं खाया, बल्कि औरत फरेब खाकर, इसलिए खुदा को खुद जिस्म लेकर आना पड़ा। अब वही खुदा जो रूह था, अब वो मुजस्सम हुआ है। उसने यानी बदन ले लिया कलाम ने। यूहन्ना की अंजील के अंदर क्या लिखा है? इब्तिदा में जहां भी जाएंगे था मिलेगा। एक खादिम मेरे पास आ गया, वो मुझे कहता है आपको 3 था नहीं नजर आते? वो 3 है। और मैंने कहा ब्रदर जी क्या हो गया? ठीक है, वहां पर लिखा इब्तिदा में क्या था? ये कलाम जो मुंह से निकला था। अब मैं बोल रहा हूं तो ये आवाज किसकी है? मेरी है ना। तो जब खुदा बोलता है, खुदा कलाम करता है, चीजें तख्लीक होती हैं। खुदा कहता है आसमान बन जाए, समान बन जाता है। खुदा जो चीज बोलता है वही बन जाती है, क्योंकि हर एक चीज को अपने कलाम से जिंदा करता है। खुदा कहता है लाजर कब्र से निकला, कलाम करता है तो मुर्दा बाहर आ जाता है। खुदा हिजकिय्याल के अंदर कहता है, पता है नबी से तू कलाम कर, क्या हड्डियां जिंदा हो सकती हैं? वो कहता है खुदा ये तू जानता है। ठीक है, और यहां पर देखें कि किस तरह जब वहां पर यह लफ्ज इस्तेमाल हुआ कि आओ हम, तो खुदा के साथ लाखों लाख फरिश्ते मौजूद थे। और खुदा फरिश्तों से कलाम करता है। क्या करता है? अब याद रखना, जो लोग कहते हैं ना कि वो बेटे और रूहुल कुदस से मुखातब था, खुदा उन्हें कह रहा था। 4000 साल से नबूवतें होती आ रही थी। खुदा ने खुद ऐलान किया, क्या कहा था? एक कुंवारी बेटा जनेगी। ऐसी बात है, कहा था ना। तो बेटा कहां पर है? कहां पर है? बेटा आसमान पर हुआ है। कहां पर हुआ है? 4000 साल के बाद मत्ती की इंजील के अंदर। ठीक है, वो कुंवारी से हुआ है। तो फिर बेटा कहां पर था? जो लोग कहते हैं कि वो बेटे से मुखातब था, क्या हो? अब याद रखना, हम कहां पर हैं? हमारी जो औलाद थी कहां पर थी? औलाद जो है ये हमेशा बाप के अंदर है। साइंस भी साबित करती है। तो फिर इसका मतलब है तो बेटा कहां पर था? खुदा खुद थियोफनी बदन के अंदर था, जो अगर ठंडे वक्त आदम से बातें किया करता था। तो फिर वो कितने थे? 2-3 शख्स से जो आके फिरते थे, आकर लिखा है कि वहां पर आकर बातें किया करते थे। लिखा बातें किया करता था। इब्तिदा में क्या था? तो कलाम, कलाम ही खुदा था। यही तो बाइबल कहती है। तो जब उसने क्या किया है? हिजकिय्याल जो है क्या देखता है रोया के अंदर? क्या देख रहा है? एक छवि, जिस तरह पैदाइश की किताब के, आओ इंसान को हम अपनी छवि पर बनाएं। छवि नजर आई है? खुदा अपने आप को यानी कि 4000 साल के बाद मुजस्सम कर रहा है। खुदा तसव्वुर कर रहा था, खुदा ख्याल कर रहा था अपने आप को इंसानी सूरत के अंदर। खुदा जमीन पर खड़ा हुआ था। आओ इंसान को हम अपनी छवि पर बनाएं। जो लोग कहते हैं, तो फिर मेरा सवाल है, अगर वहां पर बेटा और रूहुल कुदस मौजूद थे, अगर खुदा उनसे मुखातब था, तो फिर जब आदम की गलती पता क्या थी? उसने खुदा के कलाम को छोड़ा था। उसने बीवी की बात को मान लिया, इसलिए खुदा ने उसे सजा दी थी, क्योंकि तूने अपनी बीवी की बात यानी खुदा के कलाम को छोड़ दिया। लेकिन क्या हुआ? अय्यूब ने अपनी बीवी की बात मानी।
जो यस्सु मसीह की बीवी है वो भी इब्लीस की बात को नहीं मानी, क्योंकि वो गुमराह करता है, इजाफा करता है। पता चले? वो कहते हैं नहीं, खुदा भला है। आप चर्च आते हैं, आप मुबारक लोग हैं, छड़ दियो ऐसे खादमां नूं जिहड़े नुक्तेचीनी करते। पता लोग कैसे खदाम को पसंद करते, जो मीठी बातें, चिकनी चोपड़ी बातें, बाइबल जो मर्जी कहती रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उस दिन भी हम इस संडे एक मीटिंग के ऊपर थे, तो वहां पर एक बेटी तलाक याफ्ता थी जिसका निकाह मैंने नहीं किया। बेशक मेरी कलीसिया के लोग थे, मैंने बाहर से किसी खादम को फोन किया था, उसने आकर, मैंने कहा ना मुझे दुआ का मौका देने, मैं साथ बैठा हुआ था क्योंकि उन्होंने मेरी पूरी फैमिली को इनवाइट किया हुआ था, ठीक है। और खादम को मैंने कहा था कि मुझे आपने ना तो दुआ का मौका देने, ठीक है, खुद ही सारा कुछ करना है। क्यों? कि हम तलाक याफ्ता का निकाह भी नहीं करते, बाइबल इजाजत नहीं देती। मैं कहता मुझे 12-13 हज़ार रुपया मिल रहा है, क्या फर्क पड़ता है, निकाह ही करना है, मैं कर देता हूं। क्या ऐसे पैसे की कदर कीमत खुदा की नजर में, जिसे खुदा निकाह ना कहे। नहीं किया, ये सारे वहां पर मौजूद थे, बाहर से खादम को बुलाया, उसने आकर निकाह किया। लेकिन जो बलीवर हैं, मैंने उन्हें साफ बताया, भाई हम नहीं करते, हम कुंवारी बेटी का निकाह कर सकते हैं, लेकिन जो तलाक याफ्ता है उसके लिए हम सॉरी करते हैं। लेकिन जो उस घर के लोग थे उन्होंने इतराज उठाया कि हमारे पादरी साहब ने निकाह क्यों नहीं किया। उनको यह ख्याल था ये लड़की के साथ आए हुए हैं खादम, लेकिन उन्हें तो ये पता नहीं कि ये पास्टर साहब ने खुद ही बुलाए हुए। लेकिन यहां पर गौर कीजिए, काम की पासदारी करना, दौलत के आगे घुटने नहीं टेकने, दौलत आने जाने वाली चीज है, लेकिन ये कुछ जिंदगी का पता है कब हमने इस जमीन को छोड़ना है, सुबह उठना है या नहीं उठना, ये खुदा जानता है। लेकिन यहां पर जरा गौर कीजिएगा, कलाम के साथ खड़े होना। जब वो कहते हैं कि वहां पर वो बेटे और रूह कुदस से मुखातब था, तो फिर जब गुनाह सरजद हुआ, सवाल है वो किसकी मनिंद बन गया? किसकी मनिंद बन गया था? जहां पर लिखा है, देखो इंसान नेको बद की पहचान में हम में से एक ही माने, एक की तरफ इशारा है। अब मेरा सवाल है, बेटे ने जमीन पर ऐलान किया, कौन है जो मुझ में गुनाह साबित है? जी अगर उन्हें मकसद है कि गुनाह करने तो बाद रूल कुदस दी मनिंद बन गया, बेटे दी मनिंद बन गया, खुदा दी मनिंद बन गया, तो फिर ये चीज बुराई की सी? वहां पर लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, देखो हम की जो बात करते हैं ना, लफ्ज हम, ये हवाला जरा बच्चों को नोट करवा देना, मैं अब बयान नहीं करने वाला ना मैं पढ़ने वाला हूं। पैदाइश की किताब 3 बाब के अंदर है, ठीक है। अब याद रखिएगा, ये बातें बड़ी गहरी हैं, ये सरों से ऊपर ना गुजर जाए, मैं पूछ सकता हूं, ठीक है। ये मैंने कोई तैयारी नहीं की थी, पर खुदा ने मुझे कहा, मैंने दे दिया मैसेज। लेकिन जरा बात अभी शबी पर हो रही है, अभी तख्त पर आएंगे। ये तख्त के ऊपर जो शबी है किसकी है? कितने शख्स हैं? एक है या 3 है? हिजकिय्याह भी ये एक को देखता है, ये साया भी एक को ही देखता है, जिसने 712 साल पहले नबूवत की है, और 66 किताबें हैं, ऐसी बात है, और 66 ही उसके बाप हैं, यानी उसके पास वो मकाशफा था, वो 1000 साल बादशाही को भी देखता है, ये साया, और वो भी एक ही शख्सियत को देखता है। लेकिन यहां पर गौर करें, जो लोग कहते हैं उनके लिए यह जवाब है कि गुनाह करने के बाद फिर खुदा यह कहता है, देखो, किन्हें वो कह रहा है? देखो, बेटे और रूह कुदस से कह रहे हैं, कहता है देखो इंसान नेको बद की पहचान में हम में से एक ही मने, लफ्ज हम इस्तेमाल हुए, हम में से। तो वो जो एक था ना, वो लूसीफर था, रिश्ते की तरफ इशारा था, जिसने आसमान पर पहली नाफरमानी की थी और जमीन पर पटका गया था। हम में से, तो इसलिए तो मैं कहता हूं, क्योंकि नाफरमान कौन था?
जब इंसान ने नाफरमानी की तो भागे अदन से बाहर। हम में से एक यानी एक लूसीफर था जिसने हुक्म अदूली की थी, जिसने नाफरमानी की थी। हम में से एक यानी कि लाखों लाख फरिश्ते मौजूद थे, लेकिन मैं हम पर नहीं आज बोलूंगा ज्यादा, क्योंकि इतना मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है। नहीं तो लफ्ज हम पर बड़ा मैसेज है, लेकिन हम सिर्फ शबी पर रह रहे हैं। लेकिन मैंने ये इशारा कर दिया है कि जहां पर खुदा ने कहा ना, देखो नेको बद की पहचान में से इंसान जो है हम में से, तो वो लूसीफर था। ना वो खुदा की मिनेत बन गया, ना वो बेटे की मिनेत, तो ना वो रूहुल कुदस की मिनेत। नाफरमानी करने की वजह से वो लूसीफर की तरफ इशारा था, हम में से एक की मिनेत। फिर उनके पास आगे कोई जवाब नहीं है। जो कहते हैं जी वहां पर वो बेटे से मुखातब था, रूहुल कुदस से, बल्कि वो फरिश्तों से मुखातब था कि आओ हम इंसान को अपनी शबीह पर बनाएं। अब बात की समझ आई है? तो हिजकिय्याल भी यही कहता है कि मैंने उस तख्त के ऊपर, अब मैंने खाली नया अहदनामा नहीं बल्कि पुराने अहदनामे से इस बात को वजाहत कर रहा हूं कि किस तरह वहां पर भी एक ही शख्सियत नजर आ रही है। तख्त के ऊपर वो देख रहा है, और वो है कौन? ये उसकी रोया थी। वो तख्त की रोया देख रहा है और वो देखता है कि एक ही शख्स जिसकी सूरत कैसी है, शबीह कैसी है, इंसान की सी। ऐसे लिखा हुआ है ना कि जमा का लफ्ज है, इंसानों की सी है। एक ही इंसान एक ही होता है। जैसे कहते हैं हम, तू इंसान बन जा, की बन जा। यार एक इंसान की जिंदगी का सवाल है, ऐसी बात है। इंसान कौन होता है? बच्चे तो नहीं ऐसी कह सकते। जैसे कि लोग कहते हैं आदमी वो होता है जो समझदार होता है। इंसान, ठीक है, एक इंसान की सी शबीह है। तो अब अगर हम गौर करें तो फिर इस बात पर हम आते हैं, मत्ती की इंजील के अंदर भी यह बात हमें मिलती है, लेकिन उस पर भी मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन हम मकाशवा की किताब पर आएंगे। फिर 4 बाब जरा निकाल लीजिए। अब हिजकिय्याल, ये साया, ठीक है, और करूबियों के ऊपर याद रखना। फिर पैदाइश की किताब के अंदर हम चले जाते हैं। चौगिरद किस जो है तलवार का पहरा लगा दिया गया था? शोलाजन। करूबियों का जिक्र कहां पर मिलता है? पहले पैदाइश की किताब के अंदर। चौगिरद चारों तरफ, उसकी चारों तरफ जगमगाहट है। और जिस तरह बारिश के दिन के अंदर धनक नजर आती है ना, जिसे बहुत से लोग कोसे कज़ा भी कहते हैं, ये 7 कलीसिया जमाने भी हैं। और यही 7 रंग उस कोसे कज़ा के अंदर भी है। उसकी चारों तरफ जमुर्द, याद रखना, अकीक सा, आगे याद रखना, सारे रंग कहां पर हैं? फिर शकील किए हुए पीतल। पीतल एक, याद रखना, अदालत को भी ज़ाहिर करता है। और यहां पर हम गौर कर रहे हैं जी, मिल गया सबको मकाशवा 4 बाब जी। क्या लिखा हुआ है? पढ़ेंगे कि मैं खुद पढ़ूं? जी पढ़े, बुलंद आवाज से, पता चल जाए कि वाकई किसी ने ये आयत की तिलावत की है जी। अब देखना, अब ये बात नबियों और रसूलों की है। पुराने अहदनामा के अंदर जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो नबी हुआ है, लेकिन नए अहदनामा के अंदर रसूल हुआ है। रसूल का मतलब है भेजा जाना, याद रखिएगा। और उन्हें यीशु मसीह ने भेजा था, मैं तुमको भेजता हूं। और यहां पर देखिएगा, यह बात उसे उसने दिखाई है। किसने? जो था, जो है, जो आने वाला है।
कौन है? जो था, जो है, तीन नहीं एक ही है। दुनिया का शुरू जो था, खुदा का रूप पानी की सतह पर था। लफ्ज पर जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और यहां पर देखिएगा कि किस तरह यूहन्ना जो है वो इस तख्त की रोया को देखता है, इस तख्त के नजारा को देखता है और तख्त के ऊपर भी देखता है। पहले वो खाली तख्त देखता है, क्या लिखा हुआ है, ध्यान से सुन। पहले वो क्या कहता है कि मैंने क्या देखा कि आसमान पर एक, फिर आगे वो कहता है कि उस तख्त पर कोई, तो आज तख्त कहां पर है? पहले वो कहता है तख्त खाली है, आज तख्त किथे है? आज तख्त कहां पर है? मैंने बड़ी दफा बताया, दिल में नहीं, दिल ही तख्त है। दिल दे विच दिल ही तख्त है। कहां पर है? पहले खुदा की हजूरी कहां पर होती थी? याद रखना, यह जो पर्दा फट गया था ना, कहां पर खुदा की हजूरी थी? कहां पर खुदा उतरता था और काहिन को खुद तैयार करता था? याद रखना, खुदा उतरता था। खुदा उतरते नहीं थे, लफ्जों पर गौर कीजिएगा, उतरते नहीं, उतरता अकेला। खुदा उतरता और उतरा लफ्ज अकेले के लिए इस्तेमाल होता है। और यहां पर भी देखिएगा, मैं करूबियों की बात कर रहा हूं। 2 करूबी बनवाए गए थे और खुदा ने क्या कहा था मूसा से कि मेरी हजूरी कहां पर होगी? कहां पर होगी? अहद के संदूक के ऊपर जो 2 करूबियों के पर मलाए गए थे। तो आज अहद का संदूक कहां पर है? यही है जो हमारा दिल है। मैंने तेरा कलाम कहां पर रख लिया है? उस वक्त 10 अहकाम जो थे वो थे अहद के संदूक के अंदर। और खुदा कहां पर था? याद रखना, अब खुदा कहां पर है? यीशु मसीह ऐसे नहीं कहता कि ना दुनिया उसे देखती है और ना मगर तुम उसे देखते हो। शगिरत देखते थे, बाकी बाहर वाले नजर नहीं सी आता। बाहर वाले जो आम जा इंसान सी वो यही समझ जाना ये मकसद है लोगों को गुमराह कर रहे हैं। कोई कहते टैलीपैथी इस्तेमाल कर रहे हैं, कई बादल खाने चो खारज कर दिता गया ही। ਜਿਹੜਾ ਪਾਦਰੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੇ ਚਰਚ ਗਿਆ ਉਹ ਫਾਰਗ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਮਰਾਹ ਹੈ। क्यों? क्योंकि ਉਹਦੀ ਤਾਲੀਮ ਥੋੜੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ PhD ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ ਆ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਭੇਜਿਆ, किसे भेजा गया था? यूहन्ना को किसने भेजा था? बताएं मुझे। वो जकरिया का बेटा था जो कहानत का जो है खिदमत करता था। कहां से आया था सेमिनरी करके? मुझे जरा बताइए जरा। खुदा की सेमिनरी देखे और दुनिया की सेमिनरी। याद रखिएगा, कोई सेमिनरी नहीं। बाइबल में मुझे बताइए एलिया कहां से सेमिनरी करके आया था? वो बाइबल के अंदर अचानक आता है। कहां से आया? जिसने बाप से सुना है वो मेरे पास आता है, और वो सब खुदा से तालीम याफ्ता होंगे। बोलने वाले तुम नहीं, तुम जाकर खड़े हो जाना बोलने। ये वही रूह है जो जुम्बश करता था। आज भी हम कहते हैं किसका रूह जुम्बश करता है? रूह की सूरत में यस्सु जब ते गीत असी गाने पर मनन उसी तैयार को नहीं, गा गू के फिर मुकर जाने। गीत गा लेते हैं यस्सु ही सब कुछ है। अच्छा, तो जो तखत की वारी आती है नहीं, उसे तो 3 बैठे। आज देखेंगे कहां पर कितने बैठे हुए। जो मकाशफा पुराने अहदनामा के नबियों के पास था, जो मकाशफा रसूलों के पास था, और यूहन्ना रसूल जो के मकसद एक कातिब था, जो लिखने वाला था, जिसने मकसद खुदा के रूह की हदायत से ये मकाशफा की किताब को कलमबंद किया
और ये लिखवाने वाला भी कौन है? खुद यीशु मसीह। तो अब यहां पर गौर करते हैं, पहले वो तख्त देखता है। हम इस तख्त पर आज बात कर रहे हैं कि तख्त की रोया कि आज जो कितने भी आज ते तख्त खाली है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਜ ਤਖਤ ਕਿੱਥੇ ਵੇ। ਇਹ ਤਖਤ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ। ਜਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੇ ਅਸਾਂ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਦਿਲ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ। पता चलता है ना, जिस्म दिल का बादशाह है। अपना दिल जो है जिस्म का बादशाह है, सॉरी, ठीक है। तो इसी तरह जब इंसान का दिल बंद हो जाता है तो हर चीज खत्म हो जाती है। दिल रुकना छोड़ देना तो खत्म, ऐसी बात है। अब यहां पर जरा गौर कीजिएगा कि वो तख्त जो आसमान पर यूहन्ना देखता है वो रोया के अंदर देख रहा है। अब उसकी रोया देखना, हिजकिय्येल की रोया देखना, कलाम को जरा मिला के देखें ताकि आपको पूरी तस्वीर नजर आए। क्या लिखा है तुम्हारी शरीयत में? ये नहीं लिखा दो आदमियों की मिलकर गवाही। मेरे पास तो बड़ी सारी गवाही है बाइबल के अंदर जो मौजूद है। यीशु भी बगैर गवाह तो काम कोई नहीं किया। जिथे भी गया नाल गवाह मौजूद सन। बैते फिगे दे पहाड़ ते गया तो उत्थे भी पतरस, याकूब, यूहन्ना नाल ने। जदों ने याईर दी बेटी नूं जिंदा कीता तो फिर भी 3 नाल मौजूद ने, गवाह मौजूद ने। ऐसी बात है। जब वो उठाया गया फिर भी गवाह मौजूद है। तखमीनन 500 लोग मौजूद थे। याद रखिएगा यीशु ने कोई काम भी जो है बगैर गवाहों के नहीं किया। तो अब यहां पर गौर कीजिएगा, यह साया है, हिजकिय्येल है। अभी बड़े हवाला जात लिखे हुए हैं, लेकिन गौर कीजिएगा यूहन्ना जो है जब वो खुदा के रूह के अंदर आता है तो फिर जब बंदा रूह के अंदर आता है ना फिर उसे हर एक चीज नजर आना शुरू हो जाती है। मेरे पास एक खदाम भाई आए थे सियालकोट के अंदर जो कि तंजीमी थे। जाग रहे हैं ना सारे? आवाज नहीं आ रही। मैंने एक दफा मैसेज दिया था कि बुलंद आवाज से और खुदा दे लोग दे ललकारदे ही बढ़ाने, चिल्लांदे ही बढ़ाने। और जिथे यीशु हुंदा उत्थे शोर हुंदा ते जदों इबलीस शोर नूं सुणदा ते उंज ही भज जांदा। आंदा बड़े जशीले लोग ने, रूह के शोले है। पता चले ते तुसीं ते बोलदे ही नहीं है। ओ ललकारो, बुलंद आवाज ना चलाओ, पता लगे आंड गवांड नूं वाकई मकसद है कि इत्थे शोले बरसने। तो अब यहां पर जरा गौर कीजिएगा, ये जो तख्त है एक ही है। कौन सा है? जब बंदा रूह के अंदर आता है, जिस तरह कि मैंने कहा कि एक शख्स मेरे पास आया था तो वो मुझे आकर कहता है, ब्रदर जी आपको पता है कि जब पतरस, याकूब, यूहन्ना वहां पर मौजूद थे तो उनको कैसे पता चल गया था कि एक एलिया और एक मूसा है? मैंने कहा ब्रदर जी मुझे तो नहीं पता, तो मुझे था। मैंने कहा जरा आप बताएं पहले। कहते हैं जब वो एक दूसरे को अपना तारफ करा रहे थे ना, एलिया इस तरफ मशरक की तरफ से आया और दूसरा मगरब की तरफ से आया, और जब वो बातें कर रहे थे तो शागिर्द सुन रहे थे कि एक एलिया और एक मूसा है। कैसी तालीम है, कैसी डिग्रियां हैं, कैसा इल्म है जो इजाफा करते हैं। लेकिन अब जरा रूह के तलक से जानिएगा, जब यूहन्ना रूह में आता है ये समान ते खलोता किथे पतमस के जजीरा ते वेखदा की है। आसमान पर एक तख्त रखा है, हुण समान दियां चीज़ां उत्थों वेख रहा है, हर एक चीज नूं वेख रहा है, 24 तख्तां नूं भी वेख रहा है। और ये वेख रहा है कौन कौन ने। याद रखिएगा अब ये जो तख्त है आसमान पर कितने तख्त बन जाए, और ये वही तख्त है जो हिजकिय्येल देख रहे हैं, जिसके ऊपर सूरत एक इंसान, शख्सियतों की नहीं, एक शख्सियत जिसकी सूरत इंसान की सी है, और वो खुदावंद यीशु मसीह है।
اور کوئی شخصیت نہیں ہے جو اس تخت کے اوپر ہے۔ اب جو مکاشفہ، جو رویا یوحنا کے پاس ہے وہی حزقیل کے پاس تھی۔ کلام کے اندر کوئی تضاد نہیں، تضاد ہے تو اگر ہماری سوچ کے اندر، ہمارے ذہن کے اندر ہو سکتا ہے، لیکن کلام کے اندر کہیں پر بھی دراڑ نہیں، کلام کے اندر کہیں تضاد نہیں۔ بائبل ایک واحد خدا کو پیش کر رہی ہے، پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک۔ ایک دن میں نے میسج دیا تھا مکاشفہ 4 باب کے اندر کہ تو نے ہی سب چیزیں اور وہ تیری ہی اور تو نے پیدا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ 26 بزرگ جو خدا کے تخت کے سامنے ہیں، جب وہ اپنے تاج اتارتے ہیں، اس کی تمجید کرتے ہیں۔ تو اس پر میں نے میسج دیا تھا کہ دنیا بنانے والا کون تھا؟ کون تھا؟ پھر کس نے پیدا کی تھی؟ یسوع۔ نام کس کا ہے؟ آپ کو پہچان ہونی چاہیے، پرانے عہد نامہ کا یہوہ وہی تو خود تھا جو مجسم ہوا تھا۔ ٹیک چھوڑ دیں ٹھیک، میں آپ سے پوچھنے والا ہوں، اب یاد رکھنا۔ تو یوحنا جس تخت کو دیکھتا ہے وہ آسمان پر دیکھتا ہے۔ پہلے وہ خالی تخت دیکھتا ہے اور پھر وہ دیکھتا ہے کہ اس تخت پر کوئی، ذرا لفظ پر غور رکھ، بیٹھے نہیں، جمع نہیں، بیٹھا۔ میں ابھی گاڑی میں بیٹھا ہوں، اکیلا ہے۔ اب یہ یوحنا کی رویا ہے جو میں آپ کے آگے بیان کر رہا ہوں، یہ عالموں کی رویا نہیں ہے، یہ بائبل کالج کی رویا نہیں ہے، یہ تعلیمی رویا نہیں ہے، یہ سائنسی رویا نہیں ہے، یہ وہ رویا ہے جو پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک ہے۔ وہ کل آج ابد تک وہ بدلتا ہی نہیں ہے۔ وہ جو تھا، جو ہے، جو آنے والا ہے، وہی ہے سب کچھ۔ وہ شارون کا غلاب بھی ہے، ایسی بات ہے، وہ دروازہ بھی ہے، وہ چرواہا بھی ہے، وہ راہ بھی ہے، وہ حق بھی ہے، وہ زندگی بھی ہے، وہ برا بھی ہے، وہ سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی وہ ایک ہی ہے۔ اب آپ سوچتے ہوں گے وہ برا ہے، وہ دروازہ ہے، وہ چرواہا ہے، ٹھیک ہے، وہ نبی ہے، وہ نبیوں کا خدا ہے، وہ سب کچھ ہے۔ جب وہ ابن آدم تھا تو وہ کیا تھا؟ خدمت لینے نہیں بلکہ کرنے آیا ہے، تو اس نے کی ہے۔ بدن اس لیے تھا کہ وہ اپنا آپ دے، بتیروں کے گناہوں کی خاطر اپنا آپ جو ہے صلیب پر دے دے۔ اس نے یہ نہیں کہا میں خود اپنی جان دیتا ہوں، کوئی مجھ سے چھینتا نہیں ہے، خدا خود ہے۔ کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت ہے؟ تو یہی جو صورت ہے، یہی وہ جو مورت ہے، پھر کہاں پر دکھتی ہے ہمیں؟ جیسا کہ میں نے اس خدام بھائی کے بارے میں کہا تھا کہ یہاں جب بندہ روح میں آتا ہے تو اسے ہر ایک چیز دکھنا شروع ہو جاتی ہے، اسے پتہ چل جاتا ہے۔ بے شک وہ گناہ گار تھا۔ کون؟ میرا آدمی گناہ گار تھا نا، اس نے پہچان لیا ہے۔ کب؟ مرنے کے بعد، کہ یہ وہ لازر تھا جو میرے گھر کے ٹکڑوں پر پلتا تھا، آج یہ اچھی جگہ پر ہے۔ کہاں تک اس نے اس کے بارے میں معلوم کر لیا تھا کہ لازر اچھی جگہ پر ہے، لیکن میں عذاب میں، میں اذیت میں ہوں، میں تڑپ رہا ہوں۔ تو دیکھا چل دیا ہونیاں نے، برسیاں منائیاں جاندیاں ہونیاں نے، 40 دن تک ہو سکتا لوگ روٹیاں بھی بانٹ دیں کہ وہی روح نوں روٹی پہنچ جائے گی۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ روٹی بھن اتنے کھائے بہ کے پہنچ اتنے جائے؟ کبھی ایسا ہوا ہے؟ انسان کی سوچ دیکھ لیں یار، کس قدر لوگ روح سے خالی ہیں، دنیا کی دیکھو دیکھی باتیں، بس جو کسی نے کہہ دیا اسی بات پر چل پڑے۔ میں ایک جگہ پر گیا، مجھے انہوں نے کہا برسی تھی، تو انہوں نے کوئی مرغ شرغ بنا کے رکھا ہوا تھا، تو میں نے کہا بہن جی یہ کیا ہے؟ یہ اس کے لیے ہے۔ میں کہا اس کے لیے کیوں ہے جس کی آج برسی ہے؟ میں نے پوچھا
وہ بندہ بیمار سی ہاں میں کو دے کیپسول کتنے وہ بھی تو لیاؤ نا پھر کھائیے خالی روٹی دینی جے جڑے تھبا منہ دوائیاں کھانا سی وہ بھی لیاؤ انہوں پہنچ جان سوچ دیکھیں لوگوں کی 40 دن لوگ آتے نا کسی منگن والے روٹی کھوائی ایسی بات ہے نا یہ کس نے آپ کو تعلیم دی ہے کہاں سے آئی ہے یہ تعلیم کہاں سے آئی ہے یہ اضافہ ہے مسیحی لوگ نہ تو ختم دلاتے ہیں یاد رکھنا لوگ کہتے ہیں جی وہ میں دیکھا جی رویا دے وچ وہ میرے کو حلوہ مانگدا ہے سویرے حلوہ ونڈن لگ پے شیطان پر آؤ کیا سدا ہے رویا سن رہی ہو نا کوئی بات نہیں ہے جرسی تار دیں اگر گرمی لگ رہی ہے میں نے وہ دیکھے جیکٹ تار کے رکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو اب ذرا یاد رکھیے گا ابلیس بڑا لکھا ہے کہ وہ نورانی فرشتوں کا روپ بھی یہ خدا دی کاپی بھی کر دے یاد رکھیو انہیں کی کہا میں بھی تخت تے بواں گا چوتھی بیٹھا ہے یاد رکھیو کیڑے تخت خلا دے درمیان جڑا انہیں اپنا تخت بنا کے بیٹھا ہے جو دی فوج بھی ہے اوپر ہو کیا سدا ہے اندر ویکھے انسانوں نے میں اپنے پیچھے لایا کلام نو چھڈا کے جس طرح اس نے عورت کو اپنے پیچھے لگا لیا تھا لگایا تھا نا کہ اج دی عورت کون ہے پھر یسوع مسیح آدم کی بیوی گر گئی تھی ایسی بات ہے لیکن یسوع مسیح کی دلہن نہیں گرے تھے یسوع مسیح کی جو دلہن ہے نا لکھا ہے وہ اتنی قریب کی مشابہت رکھتے ہوں گے اگر ممکن ہو تو برگزیدوں کو بھی لیکن یاد رکھیے گا برگزیدہ وہ جو پیارے ہوتے ہیں لیکن یہاں پر ذرا غور کیجئے گا ایک دو حوالہ اور دیکھتے ہیں ذرا چلیں میرے ساتھ حزقییل کی کتاب اس کا 10 باب اس کی پہلی آیت پر ذرا غور کریں جی کیا لکھا ہوا ہے ذرا پڑھیے گا رویا کے ساتھ پڑھیں گے جی جی بس یہیں پر اب یہاں پر دیکھیں جو کروبیوں کے سر کے اوپر تھی اب یاد رکھیے گا اس کی صورت تخت کی سی کیسی تھی ایک حوالہ اور نکال لے ذرا میرے ساتھ دانیل 7 باب کی 9 آیت کیونکہ خدا کیا کہتا ہے آسمان کیا ہے میرا تخت اور زمین کیا ہے تو نہ اس کی قسم کھانا ایسی بات ہے کہ دی تخت دی یا خدا دی جی پڑھیے گا ذرا جی کیا لکھا ہے میرے دیکھتے ہوئے آگے جی 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 اب یاد رکھیے گا عدالت ہو رہی تھی کہاں پر یہ بات آپ کو کہاں پر ملے گی مکاشفہ 9 باب کے اندر پہ لاکھوں لاکھ اس کے حضور کھڑے تھے کون ہے یہ ذرا نکال لیں دیکھ لیں ذرا آپ یہ آج کو ثابت کریں گے ٹھیک ہے جی ہاں پڑھیں رویا کے ساتھ اسے
बस अब याद रखिएगा, क्योंकि यहां पर जरा गौर कीजिएगा, ये सब फरिश्ते उस तख्त और बुजुर्गों और चारों जानदारों के गिरदा गिर्द खड़े हैं, और फिर वो तख्त के आगे मुंह के बल गिर पड़े और खुदा को, अब ये मैं कहता हूं तख्त पर जो बैठने वाला है ये खुदा है। कौन है? खुद खुदा है। अब वो बर्रा भी है, वो यहूदा के कबीले का बब्बर भी है, वो काब भी है। अब यहां पर याद रखिएगा वो बादशाहों का बादशाह भी है। तो 26 बुजुर्ग किसके आगे गिरे हैं? और ये जो बहुत बड़ी भीड़ आपको नजर आ रही है किसके तख्त के सामने है? जो दानियल 7 के अंदर आप पढ़ रहे हैं, ये 3 ग्रुप हैं। ये जो तख्त के आगे खड़ी है ये कौन है? कौन है जो तख्त के आगे खड़ी है? कौन है? नो, दुल्हन नहीं, ये बियाबानी कलीसिया है। आप इसे बियाबानी कलीसिया कह सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अभी देखते हैं फिर इस आयत को, जरा गौर कीजिएगा। और हर एक कौम और कबीला और उम्मत और अहले ज़बान की ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता था, सफेद जामे पहने, खजूर की डालियां अपने हाथों में लिए तख्त और बरा के आगे खड़ी है, और ये बड़ी आवाज से चलाकर कहती हैं, निजात हमारे खुदा की तरफ से है और जो तख्त पर बैठा है। यहां पर भी लफ्ज बैठा है, बैठे नहीं, जमा का नहीं है, केला है। अब ये जो बड़ी भीड़ है, दुल्हन जो है वो तख्त पर है, और ये 1,44,000 याद रखना। और जो बड़ी मुसीबत में से निकल कर आते हैं, 3 ग्रुप बन जाते हैं। 100 कुंवारी, अब पता चला 10 कुंवारियों पर मैंने मैसेज दिया था, 5 बेवकूफ 5 अक्लमंद। मैंने कहा था वो पाक थी पर वक्त के पैगाम को वो जान ना सकी, उनके पास वो रूल कुदस नहीं था, इसलिए वो बाहर रह गई, दरवाजा बंद था। और अब यहां पर देखें, दुल्हन तख्त के ऊपर है और एक बहुत बड़ी भीड़ जो है कहां पर है? तख्त के आगे। पौलुस रसूल कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि मुकद्दस लोग दुनिया का? तो दुल्हन तो तख्त पर होगी। उसने कहा जिस तरह, अब सुनना, जिस तरह मैं गालिब आकर अपने बाप के तख्त पर बैठ गया, तो जहां पर मैं हूं वहां पर जो गालिब आए, याद रखना, वही इस तख्त पर बैठेगा। उस तख्त के ऊपर कौन होगा? उसकी बीवी होगी, उसकी दुल्हन होगी। 3 ग्रुप मैंने बताए हैं, 1,44,000 और 100 कुंवारी तख्त के सामने खड़ी है, लेकिन उसके पास वो मकाम नहीं है जो दुल्हन के पास है, क्योंकि दुल्हन तख्त के ऊपर है, लेकिन ये सामने है, तख्त के आगे जो खड़ी है। लमास जाका भाई ने एक दफा इसे पता है क्या बयान कर दिया था, ये दुल्हन है। मैंने उन्हें कहा था, ब्रदर जी ये दुल्हन नहीं है, ये 3 ग्रुप है। मेरा ये 25 मिनट का क्लिप है जो YouTube के ऊपर ही है, मेरे चैनल पर है, उसे मैंने सेंड भी किया था, ठीक है। जैसा कि उसने कहा था, जी दुल्हन उठाई नहीं जाती, ठीक है, ये तो तख्त के सामने खड़ी है, लेकिन यहां पर है 3 ग्रुप है। लेकिन मेरा जो आज का अनुमान था कि जहां पर भी आप जाएंगे आपको वाहिद ही मिलेगा। यहां पर भी क्या लिखा हुआ है कि जो तख्त पर बैठा है, बैठे नहीं है, लफ्ज बैठा केले को ज़ाहिर करता है। मैं वहां पर बैठा था, अगर ज्यादा होते तो फिर क्या, हम वहां पर बैठे थे। मैं वाहिद केले को ज़ाहिर करता है, बैठा है, और यही मुकाशवा 4 बाब के अंदर है। कौन? जो तख्त पर बैठा। कौन? यीशु मसीह। यूहन्ना किसे देख रहा था? जो 7 चिरागदानों के दरमियान चल फिर रहा था। कौन था? ये आवाज कहां थी? 1 बाब की 8 से 13 के अंदर पढ़ेंगे तो ये आदमजात सा जो शख्स है, जो इंसान है, ये कौन है? 7 चिरागदान, ये 7 कलीसिया ज़माने हैं जिनके अंदर वो चल फिर रहे हैं।
تو جب وہ زمین کو چھوڑتا ہے تو جا کر تخت پر بیٹھ جاتا ہے. اچھا اپنی کلیسیا سے ستاں چراغ دا نہ ویچو چلدا تے معجزے یسوع گیت سنے کبھی گایا ہے؟ گایا کریں. خالی سننے سے کام نہیں بنتا. لکھا تم میری عبادت کرنا. ٹھیک ہے. تو یہ جو سفید لباس، سفید اون کی طرح اس کے بال سفید، یہ منصف کو ظاہر کرتے ہیں، یاد رکھنا. ٹھیک ہے. اور اگر یہ حوالہ نکال لیا آپ نے، 1 باب کی 8 سے 13 آیت مکاشفہ، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے یہ جو آسمان کے اوپر جا کر تخت کے اوپر بیٹھنے والا ہے یہ واقعی یسوع مسیح ہے، تاکہ آپ بہتر طور پر جان سکیں. گھنٹہ ہو تو نہیں گیا بندہ چڑھے. اچھا چلو کوئی نہیں، 10 منٹ ہے. چلو جی پڑھیے گا بلند آواز سے. خداوند خدا کون ہے؟ اور خداوند ہی خدا ہے، کوئی دوجا نہیں. کہ ہے خداوند ہی خدا ہے. آپ کو پتہ ہے مال کی کتاب کے اندر کیا لکھا ہے؟ خداوند نے کیا کیا؟ اسے مسیح بھی اور خداوند بھی کیا، یعنی مسیح خداوند. تمہارے لیے آج ایک بہت بڑی خوشخبری ہے کہ داؤد کے شہر میں ایک نجات دہندہ، ایک منجی، اور منجی خود ہی خدا ہے. یاد رکھنا، بڑے سارے بائبل کے اندر یہ لفظ ملتے ہیں منجی کے. تم اس منجی خدا کو بھول گئے. ٹھیک ہے جی آگے پڑھیے گا. خداوند خدا کون ہے؟ قادر مطلق کون ہے؟ یسوع مسیح جو آنے والا ہے، اسے قادر مطلق کہا گیا ہے. آگے اب یہ بولنے والا کون ہے؟ میں ہی الفا. آگے جی اس ٹاپو جی پتمس کے جزیرہ کے اندر. آگے وہ خداوند کے دن کہاں پر آ گیا ہے؟ کہ جدو بندہ روح چاہتا ہے نا ہر ایک چیز کلیئر نظر آن لگ پی. ٹھیک ہے، آسمانیاں چیزاں نظر آن لگ پی. آگے اپنے پیچھے یہ آواز کہاں پر تھی؟ اس کے پیچھے سنائی دی ہے. آگے اور جو کچھ تو دیکھتا ہے جب وہ روح میں آتا ہے ہر ایک چیز اسے کلیئر دکھ رہی ہے کہ اب یسوع مسیح جو تھا یہ دوسرا قانون نہیں تھا، دوسری شخصیت نہیں تھا، بلکہ لوگوں کا خیال تھا روح القدس تیسری شخصیت ہے، بلکہ روح کی صورت میں یہی یسوع کھڑا تھا. پہلے وہ جسم میں تھا، اب وہ روح کی صورت میں کھڑا ہے اپنی کلیسیا کے درمیان. اب یوحنا اسے کس طور پر بیان کرتا ہے؟ خداوند خدا. کسے؟ یسوع مسیح کے بارے میں. وہ یسوع مسیح کے بارے میں بیان کر رہے ہیں. آگے اب جو آدم ذات سا شخص ہے وہ اسے کہتا ہے کہ اسے کتاب میں لکھ دے اور 7 کلیسیاؤں کے پاس بھیج دے. 7ویں کے اندر آج ہم کھڑے. آگے ہاں جی جی فلدیفیا. آگے میں نے اس آواز دینے والے کو، یہ ابن آدم کون سا ہے؟ پھر یسوع مسیح جو اپنی کلیسیا لکھا جاؤ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے اج کون ہے ساڈے جہاں 2 یا 3 تے میں کتنے تیسری شخصیت بیٹھی ہے آگے ساڈے درمیان یا وہی بیٹھی ہے جن کو 3 نظر آتے ہیں؟ یہ ان کے لیے میسج ہے، سنیے گا.
और आगे पढ़िएगा, जिसने मुझसे कहा था। कौन था? यीशु मसीह रूहुल कुदस की सूरत में अपनी कलीसिया चल फिर रहा था, और वही यूहन्ना को जो है ये सारी बातें लिखवा रहा है। कहता है 7 कलीसियाओं को भेज दे, ठीक है। और यूहन्ना उस आवाज को जो पीछे से मुखातब थी घूम कर देखता है तो एक शख्स नजर आता है। शबीह नजर आई है? आगे बढ़िएगा जरा। उन चिरागदान जो है ये 7 कलीसियाएं हैं। 7 चिरागदान क्या है? आगे आदमजात कौन है? एक ही शख्स है, एक ही शख्सियत है। ये होई वेखोगे उन्हें तुसी ये तख्त ते जाके बैठेगी। पहले तख्त खाली है मकाशवा 4 बाब, ये होई शख्सियत जाती है तो जाके तख्त ते बैठ जाती, तो फिर 24 बुजुर्ग के सामने डिग पैंदे, ताज भी तार देंदे ने, सब कुछ। तो फिर यूहन्ना तो पहले ही उन्होंने कह दिया है खुदावंद खुदा कादर मुतलक जो था, जो है, जो आने वाला है। आगे जो पांव तक का जामा पहने आसमान पर बतौरे वो सरदार का ही है। कितने लक़ब हैं जो बाइबल के अंदर यीशु मसीह के तलक से हैं। समान पर वो बतौरे सरदार काहिन की हैसियत से हम उसे अपनी कमजोरियों के बायस छू सकते हैं। आगे याद रखना, ये हम पुराने अहदनामा की कहानत के अंदर नहीं फिर जाएंगे। जो सरदार कान हारून के सीना बांध के ऊपर जो 12 पत्थर होते थे, याद रखना। आगे यानी कि वो मुनसफ है, वो जज भी है, वही दुनिया की अदालत करने वाला है। कौन? सर सफेद कदी वेख्या जे 30 साल की उम्र च सर सफेद हो जाए? सर सफेद इसलिए जो बड़े जज होते हैं ना, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जब कोई बड़ा फैसला करना होता है ना, वो सफेद रंग की विग होती है, वो पहनते हैं, फिर फैसला लिखते हैं, फिर अदालत करते हैं। अब ये सफेद बाल जो है ये अदालत की अलामत है। आंखें शोला की मनिंद हैं, खुदा की आंखें इस कदर पाक है वो बदी को देख नहीं सकती। खुदा आग है, जब वो उतरता है आग के सतून के अंदर, या देखे कोई सीना पर उतरता है तो पूरा पहाड़ ही धुएं से भर जाता है, पहाड़ से धुआं उठना शुरू हो जाता है, गिरना की आवाज बुलंद होती है। अब ये आवाज नरसिंगे की है, इसकी है आवाज। देखिए अब आगे, पीतल अब अदालत की अलामत है। मैंने पहले कहा था सफेद विग जो है मुनसफ की, और पांव खालिस पीतल के से, और आंखें आग के शाला की मानद है। अब वो गजबनाक खुदा। आगे जी, उसकी आवाज किसकी? यीशु मसीह है ये जो आदमजात सा खड़ा है, जिसे घूम कर यूहन्ना देख रहे हैं। सोने के 7 चिरागदानों के दरमियान कोई दूसरी तीसरी शख्सियत नहीं है, एक ही चल फिर रही है। लोगों का ख्याल है ये तीसरी शख्सियत है। बाइबल को देखिए और जरा फैसला खुद कीजिए। मैं सबसे कामिल हूं, मैं सबसे कामिल हूं। अगर बात डिग्रियों की होती ना, तो यीशु मसीह जदों आया सी ना, तो फिर उस दौर के बड़े बड़े जेडे नामवर खादम सन उन्होंने चुन लेता। अनपढ़ा के कोल की लैन गया, वो कसबी के पास चला जाता है, वो अनपढ़ के पतरस के पास चला जाता है, वो मछेरों के पास चला जाता है, जो उसके चुनाव में है। वो जानता था कि ये बनाए पेशतर आलम से पहले मेरे अंदर मौजूद थे। वो उनके पास आए जो पहले चुनाव में थे, जो उसे कबूल करने वाले थे। उसने वक्त जाया नहीं किया। 70 छोड़ गए थे ना, उसे पता था ये मुझ में से नहीं है, जाने दो। अब यहां पर जरा गौर कीजिएगा, मैं जरा ये वजाहत कर रहा हूं ताकि आपको पता चल सके ये तख्त पर बैठने वाला कौन है। जरा पढ़िएगा। अब उसके दाहिने हाथ के अंदर 7 सितारे नजर आए। 7 चिरागदान थे, 7 चिरागदान 7 कलीसियावां सन। 7 चिरागदान की सन ते 7 जेडे सितारे ने किदे हाथ दे विच ने?
ते 7वां सितारा विलियम ब्रैनम से। याद रखना, तो सितारे कब निकलते हैं? जब अंधेरा छा जाता है, जब दुनिया अंधेरे के अंदर चली जाती है, जब तरीकी के अंदर चली जाती है, तो इब्लीस जो है ये तरीकी है। जब दुनिया गुनाह के अंदर चली जाती है, खुदा के पैगंबर को भेजता है, एक सितारे को भेजता है, ताकि वो दुनिया के अंदर रोशनी दे। और रोशनी कलाम है। दुनिया को झंझोड़ा जाता है ताकि वो वापस आए। आगे अब देख ले, ये दो धारी तलवार मकाशवा की किताब के अंदर भी हमें मिलेगा 19 बाब के अंदर, जो घोड़े के ऊपर सवार है, सफेद घोड़े के ऊपर, उसके मुंह से एक दो तलवार क्या है? कलाम। तेरा कलाम दो धारी तलवार है। याद रखना, अब ये दोनों तरफ काम करता है, खादम के लिए भी उतना ही है और तंजीमों के लिए भी उतना ही है। काटता है, छांटता है, दो धारी तलवार उसके मुंह से। और कलाम दुनिया ही जो है, दुनिया कलाम ही के वसीला से बनी थी, और इसी कलाम के वसीला खुदा काटता है। आगे उसके मुंह से ये कलाम है जो निकला है। आगे उसका चेहरा कैसा चमकता था। याद आया पहाड़ जहां पर पतरस, याकूब, यूहन्ना मौजूद थे, तो उसका चेहरा ऐसे चमका जैसे आफताब। तो वो आफताब सदाकत है। अब देखिएगा, कहेंगे ये कोई और है। बाइबल के अंदर बड़े सारे लक़ब हैं, पूरी बाइबल लक़बों से भरी पड़ी है, जो यीशु मसीह की तरफ इशारा है। वो आफताब सदाकत भी है। और उसका चेहरा इस कदर चमका, कहां पर? उसकी सूरत बदल गई। कहां पर? जहां पर एलिया और मूसा ज़ाहिर हुए थे। अच्छा, ऐसे लिखा हुआ है ना। आगे बढ़िएगा। जब मैंने उसे देखा, ये नहीं आता, जब मैंने उन्हें देखा। हो सकता है त्रै खलोते हो हुण जरा रसूल दे कोल जेड़ा रोया ना, वो भी वेखदे जाए, ते जेड़ी पुराने आदनामा दे नबियां को सी ना रोया, वो भी जरा वेखदे जाए। आता जब मैंने उसे कल्ले ही खलोता आ जाए। हुण दस्सिओ भी तीसरी शख्सियत है या वही रूह है जेड़ा यीशु मसीह इब्ने आदम, वो यीशु मसीह जी। उन्हें पहचान लिया रूह दी सूरत च जदों आया कि वही है, कोई और तो नहीं। लेकिन लोगों से आज पूछेंगे, बाप ते जेड़ा ना, बाप ने किनू भेजिया सी? बेटे नू। इवें गल है। फिर बाप ते बेटे ने दोवां ने मिल के ते रूह कुदस नू भेजिया। तो बाइबल बयान कर दी है, योएल नबी की किताब से, पिछली दफा मैंने कहा था, खुदा खुद कहता है कि मैं अपनी रूह नाज़िल करूं। तो खुदा खुद रूह है, वही तो अपनी कलीसिया के दरमियान है। आगे बढ़िएगा जरा। यूहन्ना कहता जब मैंने उसे देखा तो उसके पांव में मुर्दा सा। जी शार्ट करेंगे, आगे जाएं, दो आयतें छोड़ दें। जी कौन है ये? कौन है? मैं अव्वल, सबसे अव्वल। ये यशायाह नबी की किताब के अंदर आपको लफ्ज़ मिलेंगे, जरा निकालिएगा। महम 43 बाब या 44 होगा। मैं ही अव्वल। कौन कह रहा है? खुदा कि दूसरा तीसरा? जरा समझिएगा इस बात को। ये बातें जब शुरू कर ली जाए तो खत्म करने को दिल नहीं करता। क्यों? कि हम उसके लोग हैं। जी क्या लिखा हुआ है? निकालू हो वाला फिर। मैं ही अव्वल, ये 43 निकाल के देखिएगा जरा, ताकि हम खोज करते जाएं ये है कौन। इसको बंद कर दो यार। जी मिले? ये मेरा ख्याल है 48 बाब है।
उसकी 12 आयत है, गौर कीजिएगा जी। पढ़ें, रोया के साथ पढ़ेंगे बुलंद आवाज से। कौन कह रहा है? खुदा। आगे कौन? मैं वही हूं। कौन है ये? कौन है? खुदा बोल रहे हैं, पुराने अहदनामा का यहोवा। मैं वही हूं। कौन? आगे मैं ही अव्वल और मैं ही आखिर। और खुदा कह रहे हैं मैं ही अव्वल मैं ही आखिर हूं। और वहां पर यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं ही अव्वल मैं ही, ताकि आपको पता चल सके ये वही खुदा है, कोई दूसरा तीसरा खुदा नहीं आ गया। आगे पढ़िएगा। यकीनन तेरे ही हाथ से जमीन की बुनियाद डाली। किन्ने? मेरे हाथ ने। ये वही हाथ जे जिन्हें 10 अहकाम लिख के दिते सन। पता चला मूसा को? हाथ नजर आया? मूसा ने भी जिद की थी, खुदावंद मैं तेनू वेखना चाहना। या उन्हें ये नहीं पूछा खुदावंद तुसी किन्ने हो, तिन्ने ही मैनू अपना आप वहाओ। उन्हें कहा खुदावंद मैं तेनू वेखना चाहना। खुदा ने पता क्या, इंसान वेख के मैनू जिंदा नहीं रह सकता। पर तू उन्हें की जदों खुदा उतों दी गुजरिया तो उन्हें एक मर्द की जड़ा पुश्ती देखी है बस। इस कदर जलाल सी ते मूसा उत्थे गिर गया। अब याद रखिएगा वही खुदा मुजस्सम होकर नए अहदनामा के अंदर चल फिर रहा इंसानी रूप के अंदर। दुनिया उसके वसीला से पैदा। यूहन्ना की इंजील एक बाप अगर निकाल के पढ़े तो आपको वहां पर मिलेगा, पर दुनिया ने उसे ना पहचाना। पैदाइश एक बाप पहला निकाल वो पढ़ेंगे ना अगर यूहन्ना की इंजील पहला बाप, तो आपको मिल जाएगा। 12 आयत के अंदर लिखा हुआ है दुनिया उसके वसीला से पैदा और दुनिया ने उसे ना पहचाना। इमानुएल का मतलब ही यही था, खुदा हमारे। अब अव्वल और आखिर का पता लग गया कौन है? यहोवा पुराने अहदनामा का। नए अहदनामा में यही लफाज यीशु मसीह पर पूरे उतरते हैं। वही खुदा था जो मुजस्सम हुआ था। जी आगे चलिएगा, आप छोड़ दे इसे। मकाशवा 4 बाब के अंदर ही अब ये आवाज देने वाला जो था पीछे, आप जरा गौर कर लें कि यही आवाज जब जमीन को छोड़ती है तो यूहन्ना को ऊपर बुलाती है। मैंने बड़ी कोशिश की है कि आप लोगों को इस बात की समझ आ जाए। जी यूहन्ना आरफ का मकाशवा जो है उसका 4 बाब पहली आयत से पढ़िएगा जरा। आप उस आवाज को जरा याद रखिएगा, जो आवाज उसके पीछे सोने के साथ चिरागदानों के दरमियान से मुखातब थी, जिसको वो घूम कर देखता है। आगे बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ, यह आसमान में एक दरवाजा खुला हुआ है। जी अब दरवाजा कौन है? यीशु। यीशु ने कहा भेड़ों का दरवाजा। क्या समझे आप? वो दरवाजा भी, वो चरवाहा भी है, वो चुफान भी है, ठीक है, वो यहोवा भी है, वो यीशु मसीह भी। पूरी बाइबल बड़ी बड़ी है। कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। आगे जिसको मैंने पेशतर नसींगे की सी आवाज। अब ये आवाज जो थी जोर के पानी की सी थी। मकाशवा पहले बाप के अंदर हम पढ़ रहे थे, जो उसके पीछे सुनाई दे रही थी, जोर के पानी की सी। अब ये नरसिंगे की आवाज जो है किसकी थी? यीशु मसीह। आगे अपने साथ बातें करते सुना। 7 चिरागदानों के दरमियान उसने जो है उसको अपने साथ बातें करते सुना था, जो उसे कह रहा था इसे लिख और 7 कलीसियाओं को भेज दे। आगे वही फरमाता है अगर तुम ईमान ना लाओगे कि मैं वही हूं तो अपने गुनाहों में मरोगे। यूहन्ना की इंजील के अंदर वो कहता है, और यही बात वो यशायाह से कहता है, मैं वही हूं, मैं ही अव्वल हूं, मैं ही आखिर हूं। ना मुझसे पहले कोई खुदा हुआ तो ना कोई मेरे बाद होगा। यशायाह के अंदर खुदा कहता है। आगे बढ़िएगा। मैं तुझे वो बातें, लफ्ज वाहिद है मैं तुझे वो बातें दिखाऊंगा जिनका अब इन बातों के जमीनी काम जब मुकम्मल हो जाता है। अब वही बात जो पीछे कहां पर थी, पतमस के जजीरा के अंदर सोने के साथ चिराग, जब जमीनी काम मुकम्मल हो जाता है तो वही बात जमीन को छोड़ देती है। तो कहां पर सुनाई दे रही है? अब जरा याद रखना, आगे पढ़िएगा।
उसने जमीन को छोड़ दिया है। किसने? यूहन्ना ने। क्यों? कि उसने जमीनी काम मुकम्मल हो गया, क्योंकि उसने कहा अब मैं तुझे वो बातें दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद होना जरूर है। आगे बढ़िएगा। क्या आसमान पर एक तख्त रखा है और उस पर मैं बैठा? जी, उस पर कोई, ये बैठा हुआ कौन है? वही जो जमीन पर उसके साथ वाज मुखातब थी, उसी ने जमीन को छोड़ दिया और उसने उसे ऊपर बुला लिया है। किसे? उसने यही कहा होगा ना, अब यूहन्ना मैं तेरे साथ नीचे गुफ्तगू नहीं कर सकता क्योंकि मेरा जमीनी काम मुकम्मल हो गया, अब ऊपर आ जा, मैं तुझे वो बातें दिखाने वाला हूं जो कलीसिया जमानों के बाद होंगी। सबसे पहले रैप्चर होगा। यूहन्ना दुल्हन की नुमाइंदगी कर रहा है। किसकी नुमाइंदगी कर रहा है? जिस तरह यूहन्ना आसमान पर चला गया ना, उस आवाज ने, अब वो जमीन पर पीछे नहीं देख रहा, ऊपर देखता है। तो वो जब ऊपर देखता है तो आसमान पर एक पहले वो दरवाजा खुला हुआ देखता है, और वो दरवाजा कौन है? यीशु मसीह। भेड़ों का दरवाजा कौन है? यीशु मसीह। ठीक है, जो कि मुझसे दाखिल हो वो निजात पाएगा। दरवाजा एक ही है, घर दा है दरवाजा एक ही है। ठीक है, तो खुदा दी कलीसिया का भी दरवाजा एक ही। अब याद रखिएगा, आगे जब वो जमीन को छोड़ता है तो वहां पर जाकर आसमान पर यूहन्ना किसे देखता है? कि कोई बैठा है, वही यीशु मसीह जाकर तख्त पर बैठा है। ठीक है, खुदा ये चाहता है कि आज जो रोया हिजकिय्याह की थी, यसाया की थी, पैदाइश की किताब के अंदर जो करूबियों को हमने लिया, ठीक है, फिर हमने यहीं पर आकर मुकाशवा 4 बाब के अंदर इस बात को साबित किया कि ये बैठा हुआ कौन है। बैठा लफ्ज़ अकेले को ज़ाहिर करता है। कौन है? ये वही है जो 7 कलीसियों के दरमियान चल फिरा। वही जब ज़मीन को छोड़ता है तो आसमान पर जाकर अपने तख्त पर बैठ जाता है। जब वो अपनी दुल्हन को ले लेता है, उसके बाद खुदा गज़बनाक हो जाता है। उसके तख्त में से बिजलियां, आवाज़ें और गरजे पैदा होती। सो खुदा ये चाहता है, आज मैंने आपको तख्त के रोया के तलक से बताया है और यह साबित किया है कि उस तख्त के ऊपर एक शबी इंसान की। लेकिन आज लोग कहते हैं जी उत्थे 2 बैठे, उत्थे 3 बैठे। लेकिन जो मुकाशवा यूहन्ना के पास है, ज़रा इस पर गौर कीजिए, और जो आज के आलमों के पास है, जो आज की तंजीमों के पास है, ज़रा ख्याल कीजिए। इजाफा तो नहीं आप कर रहे। आप उस कलाम को लें जो नबियों के पास था, जो रसूलों के पास था, उस पर बिलीव करें। अगर आप इसे रद्द कर रहे हैं तो खुदा आपको रद्द कर दे। याद रखना, खुदा आज के कलाम के वसीला आपको बड़ी बरकत दे।